कल लैप कल लैपटॉप लाना है क्या? कल लैपटॉप लाना है ना। हाँ, चलो फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट MCQs, let's start. ठीक Thrifty है। company's cash budget highlights a short-term surplus in the future. 50 companies start budget forward short-term Which of the following surplus actions would inventory. be appropriate to make use of surplus? A, suppliers only to take advantage of prompt payment discounts, buy back company shares, increase payables by dealing to suppliers, invest long-term fixed deposit. ये अप्रोप्रिएट लग रहा है। ये अप्रोप्रिएट लग रहा है। A ना, pay हाँ, back, pay suppliers only to take advantage. फ्रॉम A है। डिस्काउंट। Indicate by clicking in the relevant boxes whether the following statements are true or false. Working capital should increase as sales increase. An, an increase in cash operating cycle will lead to an increase in the working capital funding costs. True. Over trading is also known as undercapitalization. Working capital should increase as sales increases through an increase in cash operating cycle will lead to an increase in working capital funding cost। ये मेरे को फॉल्स लग रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे को ट्रू लग रहा है। और नहीं, थर्ड वाला ओवर ट्रेडिंग इज ऑल्सो नोन एज अंडर कैपिटलाइजेशन, मेरे को ये ट्रू लग रहा है। मेरे को तीनों के तीनों ट्रू लग रहे हैं। बट मेरे को बस ये है कि वर्किंग कैपिटल शुड इंक्रीज, मतलब शुड कंपल्सरीली इंक्रीज से एज सेल्स इंक्रीज, ऐसा रहेगा तो रॉन्ग रहेगा। बट इन्होंने ऐसे ही इन जनरल बोला है कि यूजुअली इंक्रीज हो जाता है, ऐसा उस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। आई थिंक ये तीनों ट्रू होंगे। तीनों ट्रू है। ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलो लेट्स गो। हाँ। देख, इसमें कैसे रहता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल में, तो मोर योर कैश ऑपरेटिंग साइकिल इज, उतना ज्यादा दिनों तक तेरे को उसको फंड करते रहना पड़ेगा, ऐसा। करते रहना पड़ेगा, समझो। Okay, which of the following might be associated with a shortening working capital cycle? Will increase in tax level debt expenditure, slow inventory turnover? हाँ, D. मेरे को सी, डी टेकिंग लॉन्गर टू पे सप्लायर। हाँ, D है ना। कैसे है? वर्किंग कैपिटल साइकिल का फॉर्मूला क्या है कि इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल्स प्लस रॉ मटेरियल्स प्लस फिनिश गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस माइनस ट्रेड पेबल्स या हाँ पेमेंट पीरियड। तो अगर तेरा तू हाँ। ज्यादा दिन लेगी पेमेंट पीरियड करने के लिए, तो तेरे को उतना उतना बड़ा फिगर माइनस करना पड़ेगा ना। तो इसलिए ओह तेरा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इसलिए तेरा डी, शॉर्टनिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल, ऐसा। तो तेरा डी होगा। समझा। आंसर इज डी। लेट्स गो। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन कैलकुलेटेड, ये तो हो जाएगा। लेट्स कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल। हुआ। 6 माइनस 7, 17 आ रहा है ना। हाँ, 17 भी। हाँ, 17 weeks. Let's go. A company sells inventory for cash to a customer at selling price which is below the cost of the inventory items. How will this transaction affect the current ratio and quick ratio immediately after the transaction? Indicate by clicking in the relevant box whether each ratio will increase or decrease. So customer is selling price which is below the cost
which is below the cost. So current ratio will decrease and quick ratio will increase, ना? मेरे को थोड़ा टाइम दे, रुक जाओ. न्यूमरेटर तेरा कम हुआ ना, तो अगर 10/5 तो उसका 2 आता है, 8/5 जाएगा तो उसका current कितना आएगा? inventory करंट रेशियो विल डिक्रीज, क्विक रेशियो will विल increase. इंक्रीज, क्योंकि कैश आ रहा है, ठीक है. हाँ, डिक्रीज, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं. वही है, current हाँ, ratio will decrease वही है, and वही है. A company has the following summarized statement of financial position at 31st of December. Over the next year, the company should double its sales. The company does not over plan to next year the invest. company should double its sales. हाँ. The company does not plan to invest in any new non-current assets, but inventories, receivables, and payables should all move in line with the sales. ये वो एक धैर्य का डाउट भी आया था मेरे को. क्या हुआ? ये क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ है, धैर्य का डाउट आया था मेरे को. ओके, क्या रहेगा? What cash balance in 1 year time should this imply if the non-current assets were all land, no new capital was raised, all profits were paid out of dividend? हम्म. कैश बैलेंस ढूंढने का. बस पड़ेगा 400. अगर सेल्स डबल हुआ तो रिसीवेबल्स बढ़ेगा ना? बस सेल्स डबल हो गया तो रिसीवेबल्स नहीं, उन्होंने बोला, देख ना, द कंपनी डज नॉट प्लान टू इन्वेस्ट इन एनी न्यू non-current asset, but inventories, receivables, and payables should all move in line with the sales. तो ये सब डबल हो गए. हाँ. इन्वेंट नॉन करेंट payables, inventory, receivables and payables. हम्म. इन्वेंट्री डबल होगा, रिसीवेबल्स डबल होगा, कैश वैसे ही रहेगा, और करंट लाइबिलिटीज में पेएबल्स डबल होगा, नॉन करंट एसेट नेट करंट, अच्छा नेट करंट एसेट, सॉरी, क्या होगा? नॉन करंट एसेट इज 1000, राइट? सिर्फ करंट लाइबिलिटी है. हम्म. एक ही है करंट लायबिलिटी. अच्छा, मैं बताया वो 50 ओवर कैश था. बैलेंस कैसे आया वो? उन्होंने क्या बोला है, व्हाट कैश बैलेंस इन 1 year's टाइम वुड दिस इम्प्लाई इफ नॉन करंट एसेट्स वर ऑल लैंड, नो न्यू कैपिटल वाज रेज्ड, एंड ऑल प्रॉफिट्स वर पेड आउट एज डिविडेंड्स. मतलब तेरे नेट करंट एसेट सेम रहेंगे, मतलब तेरा 1250 ही रहेगा, तो तेरे को खाली वो नेट बैलेंसिंग फिगर लेना है कैश का. 1250 वैसे ही रहेगा तो बोल रहा है. हाँ. क्योंकि कोई कैपिटल रेज ही नहीं हुआ था. ठीक है, जो भी प्रॉफिट्स आए थे कंपनी को, यानी कि जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड होने वाले थे, वो सारे के सारे एज डिविडेंड्स पे आउट कर दिए थे ऑलरेडी. तो वो टैली ऑलमोस्ट सेम अमाउंट पे ही होगा, 250. हाँ, 50 OD समझा. पीओडी ही है ना, सी ऑप्शन. आया, 50 OD 50 आया. ओड. चलो. गोल्ड स्टार हैज एन अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर, okay, 10.5 times, and inventory turnover 4 times, and payables turnover 8 times. Gold star's cash operating cycle to the nearest
365 days. 5, 5 6.5 टाइम्स है इंटू 365 करेंगे 6.5 टाइम्स है, नहीं 365 डिवाइड बाय 6.5 करेगी तो टाइम 6.5 तो 56 आए 56। आंसर चेक करते हैं। डिवाइड 80 आंसर है। 20 कैसा 80 है इंडिविजुअली करना है क्या? Or how will हाँ it इंडिविजुअली change? किया है But how will it change? ठीक है चल इंडिविजुअली करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। 365 डिवाइड बाय 10.5। आंसर चेंज कैसे होगा? इंडिविजुअली करेंगे तो भी मेरे को वो नहीं समझ। हाँ 80 आया हो रहा है ओ। लेकिन सबके साथ किया तभी भी आना चाहिए था ना रुक ना, अपन ने कुछ गलत किया क्या? 10.5 माइनस प्लस 4 माइनस 8, 6.5। 365 डिवाइड बाय 6.5, 36। डैम, ये कुछ अलग ही था यार। 18 आया ठीक है 80 अब तो आ गया। चल आगे बढ़ते। इसको हम्म, इंडिविजुअली करना है, ये याद रखा। कैश ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ हाँ, ठीक है, ये तो आ गया। पहला वाला ये हम्म। ओके अगला ए। वाला द कंपनी has annual credit sales of 27 million. Related cost of sale is 15 million. The company ये वाला 50 days 60 and 45 days चलो करते हैं तो ये ए वाला पार्ट वर्किंग क्या है क्या मस्ती कर रहे हैं कौन सा ए वाला पार्ट? हाँ हाँ इजी लग रहा है ना? हाँ तूने वो मॉक एग्जाम्स दिए क्या कभी एसीसीए के साइट पे? एफआर में दिया था तेरे को उसके एमसीक्यूज में कितने मार्क्स मिले? कब मिला था कितने मिले बता दो फिर। मतलब 20 के अराउंड 25 के ऊपर था एमसीक्यू में 29 25 थोड़ी मिलता 28 है, एमसीक्यू समथिंग में इवन डिजिट में ही मिलेगा ना। क्या एमसीक्यू में और डिजिट थोड़ी आ सकता है, एमसीक्यू में तो इवन डिजिट ही मिलेगा ना। ऐसे क्यों वो में हर ए और क्वेश्चन बी का का दो मिल मार्क है। हर क्वेश्चन का दो दो मार्क है, उसमें एक मार्क नहीं मिलता। तो बी का बोला ए में कोई कोई क्वेश्चन एक मार्क का है नहीं नहीं क्या नहीं बात कर कोई। रहा है जो ए भी था में 25 के अबाव ही था कितना मैंने अलग अलग सम्स किए थे लेकिन अच्छे मार्क्स क्या मतलब होगा मैंने एक ही बार दिया था पता है इस बार मैं मॉक 2 बार दूंगी सेम। हर एमसीक्यू का कैसे रहता है? हर एमसीक्यू
2 मार्क का आ जाए, चाहे तेरा वो क्या बोलते हैं, गिव टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू वगैरह रहता है ना, उसमें से अगर तेरा एक हाँ करेक्ट है और एक गलत है ना, तो भी 2 मार्क का 2 मार्क मिलता है या फिर 0 मिलता है। ये भरम हमारा भी दूर हुआ था, उस दिन किया था वो अदिति ने, ऑडिट के टाइम से जस्ट पहले। हाँ। अकाउंट रिसीवेबल्स को किससे करेंगे? सेल्स से। सेल से करेंगे ना? हाँ। क्या कर। 4375। रुक जाएंगे। रुक गया रुक गया। हम्म, हम्म, क्या आया? हाँ हो गया। कितना आया? 8125। नहीं, 4375 तुमका ना 8125 आया कैसे? मेरे को तो क्या आया, 801 आया मेरे को। 801 आया है। अरे मैं माइनस नहीं कर रही हूँ। सॉरी, इसीलिए मिस्टेक। आया आया। परफेक्ट। अभी नेक्स्ट वाला हाँ। क्या है? कैश बजट is drawn up as follows. Receipt, payment, what is the closing? Closing budgeted to be ओवरड्राफ्ट में मेरा। कैसे करेंगे ये? क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, फर्स्ट से करना पड़ेगा ऊपर से। क्या क्या? फर्स्ट वन से ही करना पड़ेगा ना ओपनिंग कैश के लिए। हाँ, फर्स्ट मंथ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो अक्टूबर से ही कर रहा हूँ मैं भी, कि मैं बीच में थोड़ा रुक गया था, मैं वेज जा रहा हूँ, रुक जाते हैं। क्या आया? मेरे को गलत आ रहा है आंसर। मुझे डी आ रहा है आंसर, टू फोर नाइन फाइव आया क्या? जीरो मुझे नहीं आया। ओ थैंक गॉड फाइनली। क्या? वही है। क्या कैसे किया? कुछ नहीं भाई, देखो, तेरे रिसीट्स को ऐड करना है, तेरे पेमेंट्स को ऐड हाँ करना है, रिसीट से पेमेंट को माइनस करना है। हाँ, कोई देखो किया। मिलेगा कैश फ्लो। अब वो कैश फ्लो प्लस तेरा पॉजिटिव ओपनिंग बैलेंस विल गिव यू योर क्लोजिंग कैश फ्लो फॉर अक्टूबर। क्लोजिंग फॉर अक्टूबर विल बी ओपनिंग ऑफ नवंबर। एंड रिपीट। 17,150। 17,150 हाँ, opening 17,150 तक तुम बराबर हो, 17,150 के बाद क्या ट्वेंटी हुआ? फोर
मैंने ना माइनस किया क्यों? तो नेगेटिव में चलेगा, और कुछ वो तो भी गलत आ ओवरड्राफ्ट का ऑप्शन था वहां पे। जस्ट इसमें नहीं सेइंग। है। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट रुक जाए। हाँ ठीक है, समझा। पॉजिटिव आया आया आंसर, पहले नहीं गुड। आता था समझ। कैसे गंदा से नहीं मिस्टेक कर रहे रे। थोड़ा टाइम मुझे। ये तो तुम- Which two of the following would be key aspect of company's accounts receivable credit policy? Assessing credit worthiness, checking credit limit answer या invoicing content collecting overdue debt dealing payment. मैं बोलूँ आंसर? सोर्स ऑफ फाइनेंस बोल। A and C. हाँ, ए एंड सी मेरे को भी वही लग रहा है। क्रेडिट लिमिट्स तो बार बार हम्म, चेक करने चाहिए ना। हाँ। हाँ और ये क्या डिलेइंग पेमेंट्स टू ऑब्टेन फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब वही ना, पेमेंट्स के लिए बोले थे ना। हाँ, वो पेमेंट्स के लेने के। पेमेंट्स के लिए भी वो ये तो नहीं करते। रिसीवेबल। पेमेंट्स के टाइम में भी Delaying डिले नहीं करते। payment to obtain a free source of finance। ये कहीं तो पढ़ा था मैंने, डिसएडवांटेज में या कहा पता नहीं। पर वो एक फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस है, अगर सामने वाले ने क्रेडिट पीरियड पढ़ाया तो इट एक्ट्स एज अ फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस। कहीं तो हाँ, पढ़ा रे मैंने। ठीक है। A company is preparing its cash flow forecast for the next financial period. Which three of the following items should be included in the calculations? कैश फ्लो Corporation tax फोरकास्ट। payment, dividend received from a short-term investment, loss made on disposal of an item of machinery, a bad debt written off, increase in provision, receipt of funding, a purchase of new machine. Sure. 1 मिनट, कैश कैश बनाए ना अपन, कैश। कैश फ्लो फोरकास्ट। द जो द कैश। रिसीट तो आएगा ही आएगा। द रिसीट ऑफ फंडिंग, द परचेज ऑफ न्यू व्हीकल। हाँ। रिसीट है ना, वो तो आना चाहिए मेरे हिसाब से। लॉस मेड इन, लॉस भी आएगा ना, लॉस मेड ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीनरी। कैश फ्लो और फोरकास्ट में। डिविडेंड रिसीट। चल, बैड डेट तो नहीं आएगा। बराबर है ना। बैड डेट तो हाँ नहीं आएगा बैड ना डेट कैश नहीं फ्लो में। आएगा। नहीं। एंड इंक्रीज इन प्रोविजन, एंड इंक्रीज इन प्रोविजन तेरे को लगता है? मेरे को तो नहीं लगता। एन इंक्रीज इन प्रोविजन, प्रोविजन जाता है क्या कैश फ्लो में? प्रोविजन इसमें जाता है ना, रिजर्व्स, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर इंक्रीज इन प्रोविजन मतलब वो ये बोलना चाहते हैं ना कि इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेएबल्स, तो वो सब तो आ सकता है। इसमें मुझे नहीं लगता। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये तो गलती से भी नहीं आएगा। शायद आएगा इंक्रीज इन प्रोविजन, मेरे को लग रहा है। नहीं आएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरे को पता नहीं, सी सी आ सकता है ना, द लॉस मेड, अगर रिसीट और ठीक है। फंडिंग। कॉर्पोरेशन टैक्स हम पेमेंट कॉप, नहीं आएगा। तो बी सी है। डी और ए तो नहीं आ रहे, बराबर है। तू बोल रही है सी, तेरे हिसाब से आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ एफ तो आना ही चाहिए। बचे बी और हाँ ई। एफ आएगा, बी भी बचे आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो इंक्रीज इन प्रोविजन नहीं आएगा तू बोल रही है, ठीक है। तो एफ बी सी। मैं ई एफ के बारे ठीक में नहीं श्योर है। नहीं हूँ, मैं ई के बारे में श्योर नहीं हूँ, और सी के बारे में श्योर नहीं हूँ, बट ठीक है, लेट्स चेक। ए है, ए बी एफ। अपन दोनों गलत थे, सी और ई के मामले में। ए है कॉर्पोरेशन टैक्स पेमेंट। हम कैश बेसिस भूल, लॉस, बैड डेट्स एंड इंक्रीज इन प्रोविजन और नॉन कैश आइटम। ओके।
चेंज इन प्रोविजन नॉन कैश आइटम था, मेरे को समझना चाहिए था। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन, लॉस ऑन डिस्पोजल, हाँ, 1 मिनट। अरे हाँ, लॉस ऑन डिस्पोजल ये कैश में थोड़ी दिखता है, ये तो बैलेंस शीट में दिखता है। नहीं, अरे जब हम नोट करते हैं तभी हम लॉस ऑन डिस्पोजल भी ये नोट करते हैं ना कैश फ्लो में, या नहीं करते हैं? नहीं, ये कैश फ्लो में नहीं आता ना। सिर्फ गेन आता है, या सेल वैल्यू ही आता है? गेन एक भी नहीं मिनट, आता, गेन भी नहीं आता, खाली जो सिर्फ कैश सेल रहता है वैल्यू ना, आता है। बस हाँ, जो कैश अमाउंट रहता है वो आता है, रिसीट अमाउंट। तो बी और एफ तो समझ जाना चाहिए था नाम से ही। और कॉर्पोरेशन टैक्स मेरे को नहीं समझा, मतलब उस टाइम पे नहीं याद आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड? yes, receivables upon sales into 365 days. आर अपॉन एस, बट कौन सा वाला? आर अपॉन एस ही ना, या डी अपॉन एस? हाँ, आर आर डी वेरी क्या गुड। है? ओपनिंग रिसीवेबल्स है। वेरी गुड। आंसर इज सी। Perfect. Which of the following is not usually associated with overtrading? An increase in current ratio. Overtrading में current ratio बढ़ता है. Rapid increase in revenue. Correct. Rapid increase in volume of current assets. Cash no, but बाकी सब तो yes. Current Most of the assets increase like in credit. current asset being financed by credit. Is it true? वेट भाई, ये सभी ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, रुक जा। देख, रैपिड इंक्रीज इन रेवेन्यू तो आएगा, 100% ओवर श्योर। ट्रेडिंग किया तो हाँ, आएगा आएगा। ठीक है। इंक्रीज इन करंट रेशियो, मुझे नहीं लगता इंक्रीज इन करंट रेशियो आएगा। क्यों बताता हूँ। क्योंकि अपना डिक्रीज जैसे होगा ना? रिसीवेबल्स, नहीं नहीं नहीं, डिक्रीज भी नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, स्टैग्नेंट रहेगा। क्योंकि अपन जैसे अपना रिसीवेबल्स को बढ़ा रहे हैं, अपन अपना पेबल्स भी तो बढ़ा रहे हैं ना। रिसीवेबल्स बढ़ा रहे, पेबल्स भी बढ़ा रहे, ऑन क्रेडिट लेकर। अपन अपन सप्लायर से अगर माल मंगा रहे हैं तो अपन उससे भी क्रेडिट पे ले रहे हैं, और अपन दे भी क्रेडिट पे रहे हैं। प्लस बॉटम में अपने, ऐसा मुझे लगता है, प्लस में इतना अगर ओवरड्राफ्ट वगैरह का सिचुएशन आएगा तो ये, my this assumption will stand still. But देख, रैपिड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ करंट एसेट्स, अगर यस, कैश को छोड़ा ट्रू। तो मुझे लगता बढ़ता है। रैपिड इंक्रीज इन रेवेन्यू स्टैंड स्टिल, एंड मोस्ट ऑफ द इंक्रीज इन करंट एसेट्स बीइंग फाइनेंस्ड बाय क्रेडिट। मेक सेंस ना, तू लोन लेगी बैंक से फाइनेंस करने के लिए। मेरे को फिर भी करंट रेशियो नहीं, डिक्रीज नहीं होगा यार, करंट रेशियो तो करना ही डिक्रीज चाहिए। नहीं होगा, डिक्रीज मोस्ट मैक्सिमम में मुझे ऐसा लगता है कि स्टैग्नेंट रहेगा। डिक्रीज होगा जब अपन ज्यादा, बहुत ज्यादा माल मंगाएंगे। तो चेक करें। ओवर ट्रेडिंग में तो वो ही होगा ना, हाँ। मैं ठीक है, एक चलते के हैं। साथ जाती हूँ। मैं भी एक ही साथ। A है. While ए। overtrading can result in higher inventory and receivables and payables, resulting in current ratio increasing in short term. Over the शॉर्ट टर्म, longer term, the long term, inevitable it will drain on drain cash will result in falling liquidity ratio. अच्छा, liquidity ratio. कैश कम। समझा? समझा? हाँ हेलो? हाँ हाँ, हाँ हाँ समझा। समझे क्या? दूसरा, जनरली इंक्रीज, दूसरा 67 कर रहे हैं। हाँ हाँ, जनरली। Generally, increasing the account payable payment period suggests advantage is being taken of available credit, but there are risks involved. Which of the following is unlikely to be the one of the risk involved in increasing the account payable payment period? Customer bargaining power, using supply control, losing for payment discount, supply infringing supply. Customer bargaining power increasing. मेरे को भी वही लगता है, क्योंकि बाकी सब आर डायरेक्ट, ये ना। हाँ, ए, 67 का भी ए। done.
Which two of the following are aims of just-in-time system of inventory control? Reduction in capital tied up in inventory, creation of inflexible production process, eliminating all activities performed that do not add value, lowering inventory ordering costs. Just in time क्या है? Which two aims just in time? Lowering inventory ordering cost तो नहीं होता, ये मेरे को पता है. वो बढ़ेगा, वो फॉर बढ़ेगा. श्योर बढ़ेगा जस्ट बचा इन ए टाइम. बी सी. मेरे को ए और सी लग रहा है. रिडक्शन इन कैपिटल टाइड अप इन इन्वेंट्री, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाता है, तो ए करेक्ट है. हाँ, बचा बी और सी. क्रिएशन ऑफ एन इनफ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्रोसेस. इनफ्लेक्सिबल मतलब पॉसिबल है ये. फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्रोसेस बनाता है. बट लेकिन फिर जस्ट एलिमिनेशन इन ऑफ. टाइम में एलिमिनेट करेंगे हम दैट डू नॉट ऐड वैल्यू. ओके. तो 68 का ए और सी लग रहा है. आंसर इज ए एंड सी. कुछ तो समझ में. Although Which cash two? needs to be क्या invested, क्या? अच्छा, ऑल दो कैश में. हाँ, बोल दो. although cash needs to be invested to earn returns, businesses need to keep a certain amount readily available. Which two of the following are reasons for holding cash? Movement motive, transaction motive, precautionary motive, asset motive. Transaction motive तो है ही है. मूवमेंट, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी मोटिव. ठीक है. वर्ड प्रिकॉशनरी वर्ड ऐसा है ना कि वो लग रहा है कि ये होगा, तो बी हाँ एन सी. हाँ. B क्या and C. आंसर? Transaction motive is to have enough cash to pay for day-to-day transactions. Precautionary motive is to हाँ. hold cash to be paid for unexpected items and machine breakdown. ठीक है. Andrew Company is a large listed company financed by both equity and debt. In which of the following areas of financial management will the impact of working capital management be smallest? Is a large listed company financed by both equity and debt. In which of the following areas financial will impact will the impact of working will be smallest? Liquidity, interest rate, management of relationship with bank, dividend policy. इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट या डिविडेंड पॉलिसी? क्या बात कर रही है, स्मॉलेस्ट बोल रही है तू? हाँ. ओ, मेरा तो वो सबसे लिक हाईएस्ट था, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट वाला. इंटरेस्ट रेट. अच्छा, हाँ ठीक है, उसमें भी रहेगा तो फिर डिविडेंड सबसे पॉलिसी. ज्यादा रहेगा. अच्छा, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप विद बैंक एंड डिविडेंड पॉलिसी. तू बोले डिविडेंड पॉलिसी. हाँ. इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड प्रॉफिट के बाद देंगे, ठीक है. मैनेज लिक्विडिटी मैनेजमेंट यहाँ से कैसे होगा कि बस मतलब फंड करना क्या, करंट एसेट्स को या हाँ, कैश को. मैं ठीक है. ऐसे ही सोच रही हूँ. ठीक है, ये भी समझ गया मैं. मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप विद बैंक, डेट बैंक से लिया होगा बैंक. ऐसा तू बोल रही है. हाँ. और बैंक तेरा अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो देखेगा ना इन्वेंट्री, टर्नओवर, लिक्विडिटी कैसा है. ठीक है. ठीक है. और इंटरेस्ट रेट तो मेरे को डी लग रहा है द लीस्ट डिविडेंड उस पे पॉलिसी इफेक्ट बराबर है, होता है. बराबर है, बराबर. डिविडेंड पॉलिसी. Working capital management may have an impact on dividend policy, but the other areas will be. 71 में दे दो. Track company has sales of 200 million per year and a gross profit margin is 40 million, 40%, sorry. The finished goods inventory holding period varies throughout the year within the following range. Inventory holding period 120 days, minimum 90 days. All purchases, maximum and minimum. कैश बेसिस. All purchases and sales are made on cash basis and no inventory or raw material for work in progress is carried. Track company intends to finance permanent current assets with equity and fluctuating current assets with its overdraft.
in relation to finished goods inventory and assuming 360 day year, how much finance will need from the overdraft? Hmm, 200 inventory holding. इन्वेंट्री होल्डिंग हम कॉस्ट ऑन सेल्स पे निकालते हैं, राइट? कॉस्ट ऑफ सेल्स में Hmm. ये भूल जाते हैं कभी-कभी। तो क्या हम इसका एवरेज लेंगे होल्डिंग पीरियड का? एक्चुअली ना मैंने ये सब ना 3 दिन पहले किया था। इस ओके। एग्जाम किट में नहीं किया था, बट किसी और ने मुझे इतना डाउट पूछा था या किसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये सब किया था। तो क्या है? मैं आज वो लॉजिक सोच रहा हूँ कि मतलब आई नो, देख मुझे पता है कि आंसर क्या है, बट मैं लॉजिक से करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके। देख मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग डेज माने, मेरे को जो लगता है वो ये देख कि मिनिमम तेरे को 90 डेज तो उसको रखना ही पड़ेगा, और हाँ मैक्सिमम तेरा 120 डेज तक जा सकता है। तो जो ऊपर का हाँ। 30 डेज है ना, वो तेरा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बनता है। ओके। तो दैट 30 इंटू कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ 120 मिलियन बोला है, तो इज इट 91.25? 91? एक मिनट ना, मैं भी जरा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 मिनट दे। $100 मिलियन ऐसा डिवाइड है। डिवाइड बाय 360 करना, तूने 365 किया शायद। हाँ। आंसर 10 सॉरी 10 100 में नहीं, 10 वो मिलियन में लिया था ना मैंने, बिना फालतू में। नहीं, एक मिनट, कैसे करेंगे? पर होल्डिंग पीरियड दिया है यहाँ पे, तो जो ऊपर का तीस वन। दिन है ना, तेरे को वो लेना है, सो 30 डेज इंटू 120 विच इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय 360, दैट गिव्स यू 10। 120 मल्टीप्लाई होगा ना? 120 मल्टीप्लाई होगा उधर। तो हाँ हमें रिसीवेबल्स मिल, सॉरी, रिसीवेबल्स बोलते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यू मिलेगा ना? हाँ। इनटू 9, 10, अच्छा 10, हाँ ठीक 10 आया। तो मुझे है। इसका लॉजिक क्या लगा, इन रिलेशन टू फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, तो जो ऊपर का जो 30 दिन है ना, वो अपना फिनिश्ड गुड्स का इन्वेंट्री हेल्ड है। जो 90 डेज है ना, वो अपना रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा और मतलब फिनिश्ड गुड्स, ऐसा मतलब ऐसा, वो उतना मतलब प्रोसेसिंग में 90 डेज के आसपास का होल्डिंग है। ऊपर के 30 दिन जो है वो तेरे फिनिश्ड गुड्स का होल्डिंग है। देख हाँ, एज तो मैं, देयर, हाँ, मैंने जो मेथड से किया है ना, उससे भी मेरे को करेक्ट आया आंसर। मैंने तूने कौन से मेथड से? 120 से पहले निकाला, हम्म। और फिर मैंने 90 से निकाला, एंड उसका डिफरेंस लिया। मतलब मैंने वैसे किया। तो आंसर वो तो तो सेम ही वैसे, आएगा ना। हाँ, तो as मैंने there वैसे is किया, मतलब मैंने 30 नहीं। as there is minimum of 90 days worth inventory held, this element is classed as permanent asset and would be financed with equity. Only the fluctuating element of the inventory balance will need to be financed with the overdraft. Oh, okay. The difference between 120 days worth and 90 days worth of inventory, 30 days worth. The annual cost of inventory is 10 million. Okay. Right. उन्होंने बोला कि तू ओवरड्राफ्ट से कितना फाइनेंस देगी। तो 90 जो है वो तो तेरा रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स वगैरह वगैरह, तो वो तो तेरे को हर महीना करते ही रहना पड़ेगा, तो उसको तेरे को इक्विटी से फाइनेंस करना है। नाइस यार, ये अच्छा समझा।
Pop company is switching from using mainly long-term fixed rate finance to fund its working capital to using mainly short-term variable rate finance. Indicate by clicking in the relevant boxes whether each of the following items will increase, decrease, or see no change with this change in working capital financing policy. क्या है financing policy? Mainly using long-term fixed rate finance. Fixed rate finance. When working capital to using mainly short-term variable rate finance. Refinancing is interest rate over capitalization risk. Finance cost increase होगा I guess. रीफाइनेंसिंग रिस्क Cap इंक्रीज हो रहा है. मेरे को ओवर कैपिटलाइजेशन में रिस्क नहीं दिख रहा है. नो चेंज आएगा. इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं समझ रहा है. वो कम होगा ना क्योंकि फिक्स है. Switching from fixed rate finance to fund its working capital to using mainly short-term variable rate finance. फाइनेंस कॉस्ट बढ़ेगा ना या नहीं बढ़ेगा? जा यार, रुक जा. शॉर्ट टर्म के लिए तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होगा? डिक्रीज होगा क्या? मैंने डिक्रीज में ही डाला है. इंटरेस्ट रेट ओवर रिस्क कैपिटल. हाँ. अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड फाइनेंस कॉस्ट आर इंटर रिलेटेड तो इन दोनों का आंसर तो सेम ही रहेगा. मेरे को बस ओवर कैपिटलाइजेशन का कंफर्म है. नो चेंज. ओवर कैपिटलाइजेशन है मतलब ओवर ट्रेडिंग रिस्क ना. हाँ ये तो डेफिनेटली नो चेंज. रुकना. ओवर कैपिटलाइजेशन शॉर्ट टर्म में आ रही है तो नो चेंज. तो डिक्रीज, increase, decrease, no change. Decrease, increase, no तो change, no इंटरेस्ट रेट change. का डिक्रीज. इंटरेस्ट रेट रिस्क क्यों इफेक्ट नहीं हो रहा है? इंटरेस्ट रेट रिस्क तो सेम रहेगा ऐसा बोलना चाहते हैं क्या वो? देख शॉर्ट टर्म के लिए है तो शॉर्ट अमाउंट रहेगा लेकिन इंटरेस्ट रेट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज मोर एक्सपेंसिव देन लॉन्ग टर्म फाइनेंस ना. हाँ. नहीं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज लेस. तो क्या बोल रहा था? शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म एक मिनट. फाइनेंस शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज मोर रिस्कियर बट चीपर. ओ भाई साहब, किधर लेके आई है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज मोर रिस्कियर. मैंने बोला तो ज्यादा चीपर है तो ऑब्वियसली फाइनेंस कॉस्ट तो डिक्रीज होगा. रीफाइनेंसिंग रिस्क इंक्रीज होगा. ओवर कैपिटलाइजेशन का कुछ सीन नहीं है. बचा इंटरेस्ट रेट रिस्क. इसमें उन्होंने बोला नो चेंज. पढ़ लेते हैं. शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज जनरली चीपर देन लॉन्ग टर्म फाइनेंस सो फाइनेंस कॉस्ट शुड डिक्रीज. ए देख आंसर में भी यही लिखा हुआ है. हाँ पढ़ा Pop मैंने. company is moving to an इस aggressive चीपर funding बोला है. strategy that will increase refinancing risk when short-term financing needs to be renewed more frequently. Interest rate risk is seen as both fixed rate. What? कंपनी में काइंड ऑफ बराबर.
More favorable. समझा क्या? वो ये समझा कि वो लोग ये जो एडवर्स एंड फेवरेबल क्या बोलना चाहते हैं। एक मिनट। बेसिकली वो क्या बोलना चाहते हैं कि अगर ये जो रेट है ये फिक्स्ड रहेगा, तो अगर पेमेंट ज्यादा करने का अगर अभी इंटरेस्ट रेट एक्चुअली डिपेंडेंट किन चीजों पे होता है, फैक्टर्स पे, वो भी नहीं पता ना। फॉर एग्जाम्पल सुन, अगर इंटरेस्ट रेट रिस्क तेरे प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता रहेगा, या समझ तेरी कंपनी जितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, उतना इंटरेस्ट रेट्स वो कम चार्ज करेगी कि चलो यार ठीक है अपन डिवेंचर होल्डर्स को कम इसमें, या अपन कम इंटरेस्ट पे लेते हैं ऐसा। हेलो, आ गया। एक मिनट, इंटरेस्ट रेट डिवेंचर से बैंक से, बैंक का देता हूँ ना। देख देख, मैं तेरे को बैंक का एग्जांपल देता हूँ। समझ तू बैंक के पास गई, उन्होंने तेरे को तो एक कौन से अमाउंट सम दे। का बात कर रहा है? सेम ना? 72, हाँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। समझ तू बैंक के पास गई, तूने बैंक से लोन लिया, और बैंक के पास उन्होंने बोला कि हमारा जो रेट है वो वेरिएबल रेट है, डिपेंडेंट ऑन हाँ सर्टन सर्टन फैक्टर्स। और बैंक ने बोला कि हमारे पास एक रेट है जो है फिक्स्ड रेट है, ठीक है। हाँ अब वो जो सर्टन सर्टन फैक्टर्स थे, आरबीआई ने क्या किया कि अपना रेट समझ किया कम। तो एक्चुअली बैंक को भी अपना इंटरेस्ट रेट कम करना चाहिए था, हाँ, लेकिन तेरा फिक्स था। फिक्स था। तो इसलिए देखो कुछ कुछ मतलब पहले केस में फर्क नहीं 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 पड़ा। नहीं पड़ा फर्क। अभी वेरिएबल में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि समझ एक महीने में तेरा वेरिएबल अच्छा हुआ तो तेरे को प्रॉफिट हुआ 4% का, मतलब तेरा तेरा नॉर्मली था 5% का, तेरा प्रॉफिट हो गया 4% का, मतलब अब तेरे को 4% का देना पड़ रहा है। लेकिन अगले ही मंथ में बिकॉज ये वेरिएबल है, तो उसके अगले मंथ में तेरे को देना पड़ा 6% का। तो बोल रहे कि वो हाँ, कहीं ना कहीं सेट ऑफ हो जाएगा, स्टैग्नेंट ही रहेगा, वेरिएबल है ना ऐसा। इसके लिए इंटरेस्ट रेट उन्होंने देखना देना वही चाहिए था। एक्सप्लेन भी उन्होंने वही किया है। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज सीन ऑन बोथ फिक्स्ड रेट, फॉर एग्जांपल रिस्क ऑफ अंडरलाइंग रेट चेंजिंग टू मोर फेवरेबल वन एंड द कंपनी मिसिंग आउट, एंड वेरिएबल रेट रिस्क ऑफ रेट मूविंग एडवर्सली एंड कंपनी suffering financing, overcapitalization relates to level of funding rather than the type. ऐसा। लॉजिक तो समझा। क्या? मैंने बोला लॉजिक तो समझा। पर ये उस टाइम पे एग्जाम में क्लिक होगा कि नहीं, बस उसका सीन है। चल, which of the following is an advantage of implementing just-in-time inventory system? Quality control of eliminated monthly finance cost incurred on holding inventory will be kept constant. Frequency of raw material deliveries is reduced. तो गलत है। Amount of obsolete inventory will be minimized. इस एडवांटेज। डी लग क्वालिटी रहा है। कंट्रोल कॉस्ट। द अमाउंट ऑफ ऑब्सोलेट इन्वेंटरी। हाँ हाँ है ना? हाँ। मेरे को ए बी पॉसिबल लग रहा है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट एलिमिनेट नहीं होगा या बढ़ेगा? एलिमिनेटेड विल बी, बढ़ेगा ना क्वालिटी कंट्रोल, एक्चुअली एलिमिनेट नहीं होगा, मुझे लगता है क्वालिटी कंट्रोल का सेम रहेगा, मुझे लगा था। पढ़ना है क्या इनका? आंसर तो डी ही है। डी Obsolete है ना? inventory is minimized under just-in-time inventory management. Quality control becomes more important than under JIT, as breakdown faulty goods become very costly when there is no buffer inventory. Okay, okay, बढ़ता है मिनट, सेम रहता बढ़ता। फाइनेंस कॉस्ट ऑफ होल्डिंग minimized and held constant, ठीक है, आता था।
This company The large is not large company which will have 10 million cash deficit in 1 month time. The deficit is expected to last no more than 2 months. If company wishes to resolve short-term liquidity problem by issuing appropriate instrument on the money market. Which of the following should they issue? Commercial paper, interest rate future, corporate loan notes, treasury bills. इंटरेस्ट रेट फ्यूचर तो बिल्कुल भी नहीं. मेरे को ट्रेजरी बिल्स या कॉर्पोरेट लोन नोट्स लग रहा है, मोस्टली कॉर्पोरेट लोन. कॉर्पोरेट लोन नोट्स, रुक जा, are not commercial, are not instruments in the money market. तो ट्रेजरी बिल बचा ऑप्शन. कमर्शियल पेपर क्यों नहीं लेकिन? पता नहीं. कमर्शियल पेपर जो मुझे तूने पता है अभी रीजन ट्रेजर. दिया, हाँ. तूने अभी जो रीजन दिया कि कॉर्पोरेट लोन नोट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम्म. कमर्शियल पेपर भी तो नहीं है ना. है ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. है क्या कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर है मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट, लेकिन कमर्शियल पेपर मुझे एक बात बता, व्हाट इज कमर्शियल पेपर, मतलब वो क्या होता, क्या है ऐसा? मुझे भी टू बी ऑनेस्ट आइडिया नहीं है, क्लियर कल मेरा नहीं है. सर को ये बेसिक सवाल पूछने वाला कि सर कमर्शियल पेपर होता क्या है, एकदम मेरे को बताओ बेसिक ऐसा. मुझे कुछ मुझे लगता ऐसा. है इसका आंसर कमर्शियल पेपर है, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के होते हैं और वो उतने प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते. तो मुझे लगता है इसका आंसर कमर्शियल पेपर होना चाहिए. हाँ, कमर्शियल पेपर इसका आंसर. Answer is A. Commercial paper will be issued at the discount and then repaid at a nominal value in the settlement date. It is short term and traded on the money market. Interest rate futures would be used to hedge interest rate risk. Corporate loan notes are for long term funding needs. Treasury ट्रेजरी bills are बिल्स used by the government, not by companies. Companies could decide to buy treasury bills if they have short term cash surpluses. सरप्लस. सरप्लस. Mile company is looking to change its working capital policy to match the rest of the industry. The following results are expected for the coming year: revenue, cost of sales, gross profit. Revenue and cost of sales are can be assumed to be spread evenly throughout the year. ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? Working capital ratios of Mile Company compared with the industry are as follows. Mile Company Industries. बहुत ज्यादा है. मैंने जान है नहीं मैंने छड़ो तेरे रंग में अलग चित तुझे सपने मेरे सपने तेरे और कितने और गगन क्या तेरे जो ये यार मेरे को वापस से गलत आता है. तुमने कर भी लिया? मतलब सिर्फ उसका ये निकालना था ना, क्या? वर्किंग कैपिटल नेट
वर्किंग कैपिटल। तो वही तो फिर भी गलत आ रहे हैं। क्या करती हूँ मैं? रिसीवेबल सेल्स के साथ रहेगा 2500। बराबर। तो फिर इसमें भी नहीं आएगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमने सबसे पहले माइनस किया रहेगा, और तूने सबसे पहले कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकाला रहेगा और बाद में तुमने कुछ किया रहेगा, है ना? कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकाला मैंने। वही नहीं करना था। इंडस्ट्री नेट वर्किंग कैपिटल चाहिए ना। हाँ, तो सबसे पहले तू इंडिविजुअली इंडिविजुअली तू निकालेगी ना। हाँ। तीनों बार क्या, तीनों को अलग कैसे आ, रुक जा। 2808 -1403 2527। एट। ए है क्या आंसर इसका? नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। मैंने तो किया नहीं है। क्या कर रहा था इन्होंने? पता है हमने वो ऊपर वाला सम किया डिफरेंस निकाल के करने का। हम्म। वैसे करके हुए। टू नाइन एट थ्री -2359 624। 624 आया मेरे को, मतलब वही 624 600 74th था ना? 75th हाँ। क्वेश्चन, हाँ बराबर वही है। हम्म। बहुत कैंसिलेशन हो गए, मैं पहले ध्यान नहीं दिया, मतलब इजी है तो मैं ध्यान नहीं दिया। Swap company is due to receive goods costing 2,500. The terms of trade state that payment must be received within 3 months. However, a discount of 1.5 will be given for payment within 1 month. Here the following is the annual percentage cost of ignoring the discount and paying within 3 months. आया आंसर देखो। रुक जा रुक जा। 6 minus 1 1.5 divided by 98.5 plus 1 into 2 3 4 5 6 9.49% ना? हाँ 9.2। इन्होंने ऐसा शब्द क्यों यूज किया, इग्नोरिंग द डिस्काउंट?
Which of the following is annual percentage cost of ignoring the discount and paying within 3 months? इग्नोर किया डिस्काउंट का हमने, डिवाइड बाय 98.5 लिया ना, हाँ हाँ हाँ। ओके उस हिसाब से। ओके। While company occurs cost of $65 every time it places an order when its raw material supplier, it orders 3 lakh units per year. Holding cost of inventory is 2.5. Will keep buffer inventory at all times of 25,000 units. चलो, मेरे को बफर इन्वेंटरी। बफर इन्वेंटरी के ना वो होल्डिंग कॉस्ट के जैसा ही कर, मैं तो बोलूंगा। मतलब ऐसा अज्यूम कर कि तेरे को डिमांड 25,000 का आया है होल्डिंग कॉस्ट के टाइम पे खाली। 3 लाख का नहीं। एक नहीं नहीं, 3 लाख का भी और 25,000 का, मतलब अपन एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं ना क्यू में। तो अपने को ऐसा अज्यूम करना है कि क्यू एक अपना जो अपने को ईओक्यू मिलेगा वो है, और बफर इन्वेंट्री 25,000 वो दूसरे के लिए भी आया है, ऐसा 2 बार सॉल्व करना है बेसिकली होल्डिंग कॉस्ट को। ये अज्यूम कर, अच्छा। ऐसा अज्यूम करके समझा। चल। हाँ ठीक है। अभी फिलहाल तो 3 लाख यूनिट्स ही लेंगे ना हम, क्योंकि अब तक है ना ईओक्यू और वो डिमांड, वो क्या बोलते हैं, यूनिट है, उसमें थोड़ा फर्क नहीं समझ रहा है अभी भी मेरे को। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट इज दिस। अच्छा, ऑर्डरिंग, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हमें 25,000 से भी निकालना है ईओक्यू। हाँ। बट मैं क्या बोलता हूँ, इन्होंने हमें ढूंढने को खाली ईओक्यू ही दिया है। कैलकुलेट द हाँ ईओक्यू क्वेश्चन में उतना ही पूछा, तो अपन ने खाली ईओक्यू ही फाइंड आउट किया, हो गया ना अपना तो। हाँ, तो ईओक्यू दोनों का निकाल के ऐड करना है क्या? नहीं यार, इनको कुछ और ही आ रहा है ईओक्यू तो। मेरे पास बचन में है। ओ, ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ बफर होल्डिंग वन। इन्वेंट्री का आएगा। नहीं नहीं नहीं, बराबर है, अपन जो करा था बराबर है। खाली ना अपन ने एक मिस्टेक किया ईओक्यू में, शायद तूने भी किया रहेगा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ हाँ होल्डिंग 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री फॉर 1 मंथ इज 2.5। अपने को एनुअली निकालना है, तो नीचे डिवाइड बाय 30 करने का है। CH are 30, not 2.5। ये छोटी है, नहीं तो बफरिंग का वही आंसर आया है। 1140। मैं हमेशा मिस्टेक करता था, मैं एनुअली करने से मैं भूल जाता हूँ। आज तो भी जब ट्वेंटी अपन फाइव वो थाउजेंड का क्या किया? कुछ कुछ भी नहीं नहीं किया, किया वो हमने। वो खाली इन्फॉर्मेशन दिया है, वही तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ। एक्चुअली अपने को अंकल का स्टार्टिंग में क्या आया। लगा था कि कुछ और पूछा है, फिर अब मैंने जब एक बार फिर से पढ़ा कि अरे पूछा क्या है, मैं देखा कि अरे खाली ईओक्यू ही पूछा है, तो सिर्फ ईओक्यू पे रुक जाते हैं ना, ऐसा। Let's roll down. Which two of the following statements are true about cash management models? Okay. The Baumol model is more suitable when cash flows are steady and predictable. नहीं, मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, तो मेरे को नहीं, आइडिया Baumol नहीं है। model is EOQ. ओके। Both models assume that cash is either held in the current account or in the long-term investment.
In Miller or model, the upper limit for the current account balance is set by the management. हाँ, सी मुझे ट्रू लग रहा है. मेरे को नहीं समझ रहा है. Both models take into account the transaction cost of switching between current accounts and investments. ई वाला हो सकता है क्या? द मिलर और मॉडल aims to keep cash balance as close to the return point at all times. राइट, ई हो सकता है. और both models try to take into account transaction cost, लेकिन वो order cost तो लेता है ना, of switching between current accounts and investments. ये भी शायद बॉम्बल मॉडल नहीं करता है इन्वेस्टमेंट्स. मतलब अपन ईओक्यू में इन्वेस्टमेंट वगैरह देखते हैं क्या? नहीं करते. तो मुझे तो सी और ई आंसर होना चाहिए. ए और डी आंसर है. तो ये मैंने भी पढ़ना नहीं पढ़ा है, पड़ेगा ये सब. पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली. कैश पूरा अपने को पढ़ना पड़ेगा. A company ये भी नहीं has आएगा मेरे को. erratic delay cash movement standard deviation. तेरे को फॉर्मूला दिया हुआ होगा एग्जाम में, तो तू फॉर्मूला टेक्स्ट बुक से देख ले. हाँ. अपन खाली इनपुट फिगर्स डाल देते हैं फिर करते हैं. ये तो घर पे होती तेरे को भूख कैसा लगता है क्या बहुत ज्यादा, बार बार? प्यास लगा के तो खाते बैठे हैं तो सुबह से. हाँ ना, भाई भूख नाश्ता पता किया, लग रहा है मेरे. वगैरह Calculate the किया. nearest term spread between upper limit and movement that should set for current account using for people or cash model. 'Take actual movements at cost to move cash between current account and short term deposit'. एक मिनट, मैं ना खाली इसको जरा मार्क कर लेता हूँ. ए एंड डी था ना आंसर. ठीक है, मैं जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लूँ जरा इसका. चले. क्या बोला? नहीं, वो तो दूसरा देख सकते. सेल में करना पड़ेगा वहां पर भी. सेल में 3967. मैंने नहीं किया है. मैं देख के बाद में करूँगी. बुक नहीं है मेरे पास. ओ नहीं, मेरा आंसर गलत है, लेकिन 28,000 है आंसर. यार, तो ये किस में करता है फिर? वो ये डेली टर्म्स में करता है. हाँ, ये डेली टर्म्स में करता है.
हमेशा डेली टर्म्स में ही करता है, ये आंसर हमेशा ई में ही जाएगा मेरा। तो क्लोजेस्ट इज 28,000, राइट। फालतू गिरी है, फालतू गिरी। 80th पे जाए, हाँ 80th पे हाँ, जाए। डिटेल्स पे तो डिटेल्स पे Company has sales revenue of 30 million and its customers have taken an average of 75 days to pay. The company offers 1% discount to customers who pay within 30 days. Calculate the nearest $1,000 the you anticipated receivable balance if 60% of the customers take up the offer of the discount and the rest carry on paying the नहीं चलो। 75 days. ठीक है भाई, ठीक है। Question. $25 लाख। ना जल्दी आप ही गया। अब मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ गलत गलत किया, क्योंकि इतना जल्दी कैसे आ गया मेरा आंसर। कैलकुलेट द मैं भी। नियरेस्ट $100,000 the new anticipated receivable balance if 60% of the customers take the offer of discount and the rest carry on to pay the receivables। हम्म, अच्छा, और बाकी के 40 नहीं हम्म, भी तो लेते हैं। हम्म, okay, थ्री सिक्सटी फाइव डेज ही लेना है ना, कितना लेना? 50 लाख आ रहा है मेरे थ्री को। सिक्सटी डेज 50 लाख। विच इज 2.5। 4 लाख। मेरा अभी भी नहीं हुआ। 1,50,000 तक आता है, 4 लाख नहीं आता।
ओ आ गया। मैं फालतू में ना इतनी सिली मिस्टेक की ना मैंने, मुझे लगता है मैंने कैलसी में ही कुछ मिस्टेक की टाइपिंग करने में। क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट टू द नियरेस्ट $100 द न्यू एंटिसिपेटेड receivable balance if 60% take up the offer and take up the offer बोला है ना? हाँ तो उस हिसाब से तो 3.985 आना चाहिए। हाँ 3.95 मतलब, हाँ लेकिन वो क्लोजेस्ट है तो 4 मिलियन ना। तो थ्री पॉइंट नाइन एट क्या? फाइव ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ, हाँ अगर ठीक है। डिस्काउंट लिया तो 3.985 है और डिस्काउंट नहीं लिया तो परफेक्ट 4 लाख है। पर तू डिस्काउंट गलत है। हमेशा तेरे कैश पे लेती है ना, हाँ, तो तेरे सेल्स पे लेती है। तो अभी किस पे तो लिया है? 30 अभी भी इंटू, सेल्स पर ही लिया है। तूने सेल्स पे ही लिया क्या? ठीक है। हाँ। मैं तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो क्या किया पता है, मैंने तो इग्नोर किया डिस्काउंट को, और मैंने विदाउट किया तो भी 4 लाख ही आता है। हाँ, विदाउट 4 लाख ही आ रहा है। 4 लाख ही आंसर है ना? हाँ, 4 लाख के आंसर है, पर वो नहीं रहना चाहिए, मैं वैसे बोल रही हूँ, क्यों क्योंकि नहीं विद रहना डिस्काउंट चाहिए? बोला है। क्योंकि वहां पे देख ना, कैलकुलेट द नियरेस्ट $100,000 द न्यू एंटिसिपेटेड रिसीवेबल बैलेंस इफ 60% ऑफ कस्टमर टेक अप द ऑफर। हाँ टेक अप द ऑफर ऑफ डिस्काउंट, दे हैव नॉट सेड कि डिस्काउंट का इंक्लूड करो। डिस्काउंट इंक्लूड क्यों होगा, रिसीवेबल्स में थोड़ी होता है इंक्लूड डिस्काउंट, मतलब मैं तो नहीं करता, करना चाहिए क्या? तो किस पे हम लोग डिस्काउंट ये करते हैं? इस पे ना, तूने क्या किया सेल्स पता है पे क्या, ना। जो तेरे को सेल्स मिला ना, पहले पहले जो तेरे को 30 मिलियन मिले ना, उसको तू बांटती है, मैं मेरे को लगता है 60 और 40 में। 40 में। फिर तू 60 वाले पे डिस्काउंट लेती है, और हाँ, उसका अलग कैलकुलेशन है, लेकिन उसका रिसीवेबल बैलेंस कुछ और ही है। तो उसका रिसीवेबल वो 18 पे ही आता है, उसका रिसीवेबल 17 जो भी तेरे को आया ना, वो करके कितना आ जाएगा, 1899 डिवाइड बाय 100, 17,820 पे नहीं लेगी। तो मेरे को वन लगता 1.45। है ना, मैंने ये चीज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, इंटरेस्टेड ऑन डेली का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is true? A conservative working capital investment policy implies a higher proportion of permanent current assets to fluctuating current assets. Makes sense, but इसमें हम, which of the following is are true? The हाँ हाँ conservative working capital investment policy implies higher proportion of permanent current asset to fluctuating. Long-term finance are generally cheaper than short-term finance. मेरे को सेकंड वाला तो ट्रू लग रहा है, फर्स्ट वाला तू बता। मेरे हिसाब से ओनली वन इज करेक्ट, टू रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज ऑलवेज कॉस्टली। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्योंकि तू इंटरेस्ट, अभी अपन ने आज पढ़ा था ना वो, कि तू जितने सालों तक इंटरेस्ट पे करती रहेगी उतना तेरा लॉन्ग टर्म फाइनेंस बढ़ जाएगा, तो एक्चुअली लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज मोर एक्सपेंसिव देन शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अच्छा, ठीक है। आंसर इज डी। द आंसर इज डी, 81। क्या बात कर रही है? आज अपन ने तो वही पढ़ा था ना, लेकिन स्क्रीनशॉट लिया था तुमने? फिर उस चीज का। जब पढ़ा था तुम्हें?
मैंने एक्सेल में सेव किया, रुक जाओ ना, मैं बताता हूँ ना। डॉक्यूमेंट्स किसमें सेव किया मैंने उसको, FM। ये देख, लॉन्ग टर्म क्या फाइनेंस। लिखा है? ये देख, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में cheaper for aggressive, cheaper for aggressive, okay, but expensive to fund conservative। नहीं तो बड़ा एक्चुअली लॉन्ग टर्म फाइनेंस एक्सपेंसिव होना चाहिए, ये मुझे सही सही नहीं लगता। अरे डी आंसर है, मतलब 1 और 2 आर इनकरेक्ट, अपन करेक्ट क्यों देख रहे हैं? हाँ मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस जनरली हाँ, इनकरेक्ट पर ये है। इनकरेक्ट है, हाँ बराबर, मतलब वो वाला अपना सही है। ऊपर वाला गलत है। द कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंप्लाइज हाई प्रोपोर्शन ऑफ परमानेंट करंट एसेट्स टू फ्लक्चुएटिंग करंट एसेट्स, ओके वो गलत है। हाँ। Confusion may arise between working capital investment policy and working capital funding policy, which relates to the amount of long-term versus short-term finance used and is influenced by level of permanent and fluctuating current assets. It was to higher than one. It is not related to the fluctuation of permanent. ठीक है। एक मिनट यार, थोड़ा मुझे पढ़ने दे, मैं नहीं पढ़ा। Then aggressive working capital funding policy in most countries in finance with short-term funding, long-term funding. But despite the higher risk involved, it is aggressive policy because it aims to keep funding costs low. ठीक है। कंजर्वेटिव में हायर फ्लक्चुएटिंग को करेगा इन्वेस्ट, ठीक है। Which of the following statements is consistent with aggressive working capital funding policy? Most current assets are financed with long-term funding। नहीं भाई, most current assets are funded with debt rather than equity as it is cheaper. Maybe most current assets are financed with short-term funding rather than long-term funding. Right. Most current assets are funded with secured funding। नहीं, सी होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। मेरे को भी सही होता है। सी आंसर है। Two companies, Ekyak and Bridge, have the average level of working capital maximum 10 days, 12 days, minimum 6 days, 8 days। यार ऐसे बस हो गया ये वाला पेपर। नहीं नहीं करते हैं पूरा, एटलीस्ट एग्जाम किट का वर्किंग कैपिटल कर लेते हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ। एग्रेसिव मैचिंग कंजर्वेटिव वाला बोल रही हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि मेरे को आ नहीं रहा है। Ekya's working capital is financed with 4 million and long-term debt, and the working capital is financed by 9 million of long-term debt। Balance of finance is मेरे को मेरे को एकेशिया का कंजर्वेटिव लग रहा है और पर्च का एग्रेसिव लग रहा है। मुझे एकेशिया का मैचिंग लग रहा है और ब्रिज का कंजर्वेटिव लग रहा है। वाह। एकेशिया का एग्रेसिव है और ब्रिज का मैचिंग है। मतलब एकेशिया तू का सोच सकती एग्रेसिव। है, तू सोच सकती है, तूने क्या बोला?
कंजर्वेटिव और बहुत शायद। एग्रेसिव बोला। मैंने हाँ, मैचिंग और कंजर्वेटिव बोला। और जो दो स्क्वायर सिर्फ मिस हुए वो वही थे, मतलब अपन दोनों ही गलत थे। कैसे है केशा का एग्रेस है? अच्छा। बस मैं इसमें खुश हूँ। एक कैसे कैसे Acacia has 4 million of long-term working capital finance with permanent working capital of 6 million. राइट, मुझे पसंद से मैंने एक्चुअली ना पिछले वाले सम के लॉजिक से गया मैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है मैंने उसको समझा कि इसका 4 मिलियन है और इसके पास एग्जैक्ट 4 मिलियन है तो इसका मैचिंग ही रहेगा। और इसका डिफरेंस जो है वो 3 मिलियन है तो इसके पास 9 मिलियन है। बट वैसा वो नहीं है। नहीं, मिनिमम मेरे को नहीं समझा। बैलेंस मेरे को आधा पौना नहीं समझा। कुछ नहीं, वो मैंने गलत वो मेरी सोच गलत ही थी। अभी ये सोच, मिनिमम 6 और 9 होना चाहिए, मतलब वो तेरा परमानेंट करंट एसेट्स है कि वो तो तेरा रहना ही चाहिए। और ऊपर का जो है ना, ये 3 मिलियन ऊपर का और ये 4 मिलियन ऊपर का, वो तेरा शॉर्ट टर्म है बेसिकली, बराबर है। ओके। फॉलोइंग। अभी उन्होंने बोला है कि जो तेरे अभी एकेसिया के पास कितना है, 4 मिलियन ही है। तो वो हाँ, 4 का 4 मिलियन परमानेंट में डाल रहा है। तो वो उसका कम पैसा है लेकिन फिर भी वो एकेसिया इधर ही डाल रहा है, क्या बोलते हैं, परमानेंट में ही डाल रहा है, तो वो हो गया एग्रेसिव। अभी ब्रिंच वो कंपनी 6 के रहना चाहिए था लेकिन तू बोल रहा है। नहीं नहीं, हाँ अगर मैचिंग होता तो 6 रहना चाहिए था, लेकिन अभी उसके पास 4। सुन, समझ, तेरे को 6 रुपए का कुछ खरीदना है, बराबर है, लेकिन तेरे पास हाँ, है 4 ही रुपया। तो फिर भी उसको गिरवी रख के खरीद रही है शायद उधार पे, तो वो तेरा एग्रेसिव अप्रोच है। इसलिए उसको समझा एग्रेसिव समझा। फंडिंग स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे तेरे पास 9 रुपए ही थे ब्रिज ब्रिज के पास, और उसने 9 का परमानेंट करंट एसेट उसने फंड किया, मतलब उसने मैचिंग पॉलिसी यूज किया। ऐसा हो गया वो। जा। अगर 9 से ज्यादा रहता और फिर वो कम रखता तो वो कंजर्वेटिव होता। 9 से कम रहता तो वो 9 से कंजर्वेटिव होता। ज्यादा रहता 9 से ज्यादा रहता तो वो मतलब एग्रेसिव होता। मिनिमम। नहीं नहीं, मिनिमम में अभी 9 दिया है फॉर एग्जांपल, अभी मिनिमम में फॉर एग्जांपल 10 दिया है और उसने लॉन्ग टर्म में 9 डाला तो कंजर्वेटिव हो जाएगा ना। एग्रेसिव होगा ना। तू ऐसे सोच कि कम तेरे डाला पास, ना। अरे यार रुक ना जरा, तू अच्छा। ऐसे सोच हाँ। कि तेरे को खरीदना था 6 और 9, 9 रुपए की चीज, बराबर है। तेरे हम्म। पास है 4 रुपया और 9 रुपया। अब तू बोल रही है कि यहाँ पे, तो जब तेरे पास 6 रुपया और यहाँ पे 4 रुपया है तो वो एग्रेसिव हो गया ना, कि तू 4 रुपए में फिर भी तू खरीद रही है वो चीज को, फिर भी तू उस चीज को फंड कर रही है, जब तेरे पास उतना पैसा ही नहीं है। तो यहाँ पे तू समझा बोल रही है कि समझा। 9 हाँ, के मैं जगह पे गलत अगर बोल मैं रही 10 डाल दूं तो भी तेरे पास कम है ना। तो भी तू पैसा डाल रही है 10, जो तेरे पास 9 आ रहा है तो वो तू 9 का 9 डाल रही है फंड करने हूँ। को। समझा। वो हो गया तो एग्रेसिव। कंजर्वेटिव का एग्जांपल दे। कंजर्वेटिव में समझ, तेरे पास कोई चीज दुकान में 2 रुपए की मिल रही है और तेरे पास 9 रुपए है, तो तू सबसे पहले 2 रुपए की चीज एक ही ले रही है। ओके। तेरे पास है 9 रुपया और तू दो ले रही है, तो वो हो गया कंजर्वेटिव। वो थिंकिंग इतनी कंजर्वेटिव है, छोटी सोच बोलते हैं ना वैसा। अच्छा था। है ना बस। Which of the following statements are true? An aggressive working capital funding policy implies lower level of current assets. So, एक minute. Funding capital policy implies lower level of current assets and higher level of current liabilities than a conservative funding capital policy. Correct? Long-term debt finance is riskier for the lender than short-term. दोनों incorrect है मेरे हिसाब से। मेरे को सेकंड वाला तो इनकरेक्ट ही लग रहा है, फर्स्ट वाले का आइडिया नहीं। सोचना। उन्होंने क्या बोला है, एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसी इंप्लाइज लोअर लेवल ऑफ करंट एसेट्स।
and higher level of current liabilities. Higher level of current liabilities actually, एक जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ हायर लेवल ऑफ करंट लायबिलिटीज मतलब उसके पास ज्यादा फाइनेंस है और वो लोअर लेवल ऑफ करंट एसेट्स फंड कर रहा है, तो इसलिए मेरे को 1 and 2 रॉन्ग इनकरेक्ट लग रहा है। आई होप बस वो नॉन करंट लायबिलिटीज बी आंसर है। नहीं यार 84 का बी आंसर है, ओनली 2 इज करेक्ट। 2 इज ओनली लॉन्ग टर्म करेक्ट। डेट फाइनेंस था इज रिस्कियर, कैसे रिस्कियर हुआ ये? लॉन्ग टर्म डिफरेंस इज रिस्कियर फॉर द लेंडर। हाँ फॉर द लेंडर देन शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंस। ओके हाँ मैं अपने अपन ने फ्रॉम बायर के पर्सपेक्टिव से सोचा है, लेंडर के नहीं। मिस्टेक है। अरे लेंडर है ना तो वो लेंड करेगा तो जितना उसका डेट का ईयर्स बढ़ता जाएगा उतना उसको पैसा आने की संभावनाएं कम कम लगेगी है। ना, ऐसा लगेगा। और पहला वाला एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल फंडिंग पॉलिसी वो implies सही था, lower वो value. थिंकिंग सही था। An aggressive working capital refers to an organization using short-term funding to finance most current assets, 20,000 including those financing cost of placing such a buffer oriented to 200 product the like cost of holding borrowing should one interest week rate after versus being inflation. placed to a supplier हाँ, for the next year is 6 reorder level buffer stocks सब कुछ है इसमें। एंजॉय। कौन सा वाला बोल रहा है? 85 वाला। हाँ Inventory ordering policy is 1 lakh unit. Level falls to 20,000. इतना ज्यादा? The cost of placing and processing an order is 200, while the cost of holding inventory is 0.5 per unit per year. Okay. Holding orders are received 1 week after being placed with the supplier production requirement. What is the cost of ZAR's inventory ordering policy? क्या है? मैं क्या बताऊंगा, तू निकाल। मैं ऐसे क्यों जा रहा हूँ, मैं इधर भी कर सकता था। 1909। बट यू क्यों फाइंड आउट करना है इसमें। नहीं, ईओक्यू थोड़ी फाइंड आउट करना है। यू क्यों फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं। बफर स्टॉक 8,000। Ordering cost is 4 into B upon A. So it's 200.
अरे अरे सब हिंदी। 8.5 28,200। हाँ मेरे को नहीं आया तुझे। कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैं सच्ची में तो मैं तो बफर इन्वेंटरी काफी चलती है। प्लीज यार, नो प्लीज। बॉड मास, हाँ बॉड मास तो 50,000 पूरा 7,000। मैंने पहली बार किया तो मेरे को 2,000 से कम आया था। अब बराबर आया। सी मिस्टेक था यार। ना बजा। अच्छी हो गया रहेगा। चलो। मेरे को बफर वाले में मिस्टेक किया मैंने। बफर सेम सेम सेम। कंसिडर नहीं किया मैंने। वो डिफरेंस का मेरे को पार्ट समझा ही नहीं। 20,000 वॉज फॉर 1 लाख। 6 लाख के लिए 12,000 है, उसका डिफरेंस लिया ना हमने। हम्म। क्या तो ऐसे पूछू भी है, ऐसे क्यों किया। आगे जाए। हम्म, Which two of the following? Oh no, sorry. For the coming year, a company has budgeted sales of 2 million per month. 80% of will be on credit. It expects its account receivable payment period to be 3 months. Forecast average inventory and average accounts payable for the coming year are 10 million and 4 million. Means working capital. हाँ ये ठीक है। company has budgeted sales 80% of which is on credit. 80%.
400 is cash. Account receivable payment is 3 months. Forecast average inventory, average account 10 years. क्या करने का, सिर्फ वर्किंग कैपिटल निकालने का है? हाँ 10,800 आराम से रुक जा 10 भाई, मैंने निकालना नहीं। और कैसे आया तेरे को 10,800? फालतू है एकदम, सबसे फालतू समय है ये। अच्छा, यही करने हैं, समझो समझो, ठीक है ठीक है। सब दिया हुआ है। 19 कैसे 8 था, 2000 इंटू 80%, 1600 ना, 400। 404,800 कैसा है 4,000? रिसीवेबल्स ना। मेरा कैलकुलेशन नहीं हो गया। कैलकुलेटर यूज करो। एनुअल क्रेडिट, अच्छा 2 मिलियन पर मंथ है क्या? हाँ आया आया, आ गया। Which two of the following are correct descriptions of net working capital? Current assets minus current liabilities. Of course, inventory holding period plus accounts receivable collection period minus accounts receivable, ये operating cycle है. Current assets upon current liabilities, ये current ratio है. And long term capital invested in net current assets. हाँ हाँ, A और D. लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टेड इन नेट करंट एसेट, नो ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टेड इन नेट करंट एसेट। क्या पता, लेकिन बाकी के दो सेंस नहीं बना देना। हाँ वो भी ठीक है। मैंने क्या डन। then लास्ट वाला यार। last for the day, 88 वापस से देखा। characteristic working capital strategy. Match the characteristics below with appropriate capital. अच्छा हो working capital strategy. Relatively high level of current assets, relatively low level of current assets, relatively large amount of short-term finance, relatively high small amount of short-term finance. Okay. Small amount of short-term finance, aggressive financing. Large amount of short-term finance, conservative financing. क्या क्या लार्ज अमाउंट के लिए क्या है? कंजर्वेटिव। हाँ ऐसा मुझे लगता है. फिर रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स. देखा, रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स अगर होंगे, कंजर्वेटिव लग रहा है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होगा. और लो मतलब एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होगा. एग्रेसिव। लेट्स चेक. कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बराबर एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यस। बराबर एग्रेसिव फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी. नहीं, ओ थर्ड थर्ड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग. थोड़ा बहुत दोनों रॉन्ग है। थर्ड रॉन्ग है क्या, रुक जा. रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस. अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंस रहेगा कम, नहीं लार्ज अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, स्मॉल अमाउंट. ओके 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 ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस मतलब हम जो फंडिंग करेंगे वो हम ज्यादातर शॉर्ट टर्म में से करेंगे, ऐसा वो बोलना चाहते हैं. हाँ फिर एग्रेसिव. और लिटरली स्मॉल अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. स्मॉल अमाउंट ऑफ नहीं शॉर्ट टर्म समझा। फाइनेंस. अरे तेरे पास अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, मतलब तू कहाँ, मतलब तू फंडिंग तेरी कहाँ से ले रही है ज्यादातर, लार्ज अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. ओके, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। 100 में से 20 निकालेगी अगर तू शॉर्ट टर्म का, तो बचेगा 80 विच इज लॉन्ग हम्म टर्म फाइनेंस. ऐसा तो फिर वो हम्म। कंजर्वेटिव है. ऐसा. ये थोड़ा ट्रिकी था बट सही था. हो Relatively गया। large amount of short term. ठीक है. अब क्या. अपग्रेड। देख. पीते